Hello student, this is part 5 of chapter 1, topic resources and development. In this part we will continue part 5, resources planning in India. The availability of resources is a necessary condition for the development of any region. देखिए किसी भी रीजन के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर रिसोर्सेज का होना बहुत ही ज़रूरी है, बट merely availability of resources in the absence of corresponding changes in the technology and institution में in their development. There are many reasons in our country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहाँ पर रिसोर्सेज तो काफ़ी अबाउंडेंट क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट की कमी होती है. तो डेवलपमेंट कम क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पर टेक्नोलॉजी की कमी होती है. इकोनॉमिकली वहाँ टेक्नोलॉजी सेटअप नहीं होता, इसीलिए जो ये जो रीजन्स होते हैं ये बैकवर्ड रीजन होते हैं. There are many reasons country that are rich in resources, but these are included in economically backward region. On the contrary, there are some regions which have a poor resources base, but they are economically developed. इसके अपोजिट यदि हम देखें तो बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज कम है, लेकिन वहाँ वो फुली डेवलप्ड रीजन है या फुली डेवलप्ड स्टेट है. ऐसा क्यों? बिकॉज वहाँ पर जो इंडस्ट्री सेटअप है, इंस्टीट्यूशन सेटअप है और टेक्निकली सेटअप है वो स्ट्रॉन्ग है. वहाँ की जो इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए जो रीजन है या डेवलप्ड रीजन कहलाते हैं. दिस हिस्ट्री ऑफ colonization revolve that the rich resources in colonies were the main attraction of the foreign invaders. Was primarily the higher level of technological development of colonizing colonies that helped them to exploit resources of their region and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can be contribute the development only when they are accompanied by appropriate technologically development and institutional changes. India has experienced all the different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and the historical experiences of the people. देखिए अब क्या हुआ, जो कोलोनाइजेशन जो पीरियड था जिसमें जो फॉरेनर्स थे, फॉरेनर इन्वाइडर्स इंडिया आए थे, उन्होंने क्या देखा, जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है उन्होंने वहाँ पर अपनी कॉलोनी सेटअप की और अपना बिजनेस स्टार्ट किया. इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी रीजन के लिए या किसी भी स्टेट को डेवलप बनाने के लिए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे पहले वो टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज वहाँ पर होना चाहिए, तभी कोई भी रीजन स्ट्रॉन्ग बन सकता है इकोनॉमिकली. Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources. इसलिए हम कह सकते हैं इंडिया में केवल वही रीजन डेवलप्ड नहीं है जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं, बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजी, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बल्कि वह रीजन भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी होती है, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी होती है, एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, और जहाँ पर लोगों को एक्सपीरियंस होता है, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस होता है, वह रीजन भी अपने आप में इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं. Voicing is concerned about resources conservation. In these words, there is enough for everybody's need and not for anybody's greed. He placed the greedy and selfish individual and exploitative nature of modern technology as the root cause for resources depletion at the global level. He was against mass production and wanted to replace it with the production of the masses. Sorry, I skipped one paragraph. Conservation of resources. Resources are vital for any development activity. किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए resources एक मेन रोल प्ले करते हैं, बट irrational consumption and over utilization of resources may lead to social, economy and environmental problems. लेकिन किसी भी resources का ओवर यूज, एक्सेस यूज क्या करता है,
क्या जनरेट करता है, सोशो इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स या सोशो इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट। इसलिए टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, जो रिसोर्सेज क्राइसिस की जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल्स इज इम्पोर्टेंट। तो हमें क्या करना चाहिए, रिसोर्सेज को कंजर्व करना ये चाहिए। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और हमारे पास्ट के जितने भी लीडर्स हुए या थिंकर्स हुए उनका भी कंसर्न इस चीज़ पर था कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए, उनको यूटिलिटी के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेज कंजर्वेशन इन दीज वर्ड। गांधी जी का जो रिसोर्सेज के प्रति कंसर्न था वह इन शब्दों से पता लगता है। देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। वो रिसोर्सेज के लिए कहते हैं देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड। प्रकृति में जो रिसोर्सेज है वह एवरीबडीज नीड मतलब प्रत्येक की आवश्यकताओं के लिए इनफ है, पर्याप्त है। एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड, लेकिन यह किसी के भी लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल द एक्सप्लॉयटेशन नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज द रूट काज फॉर रिसोर्सेज डिप्लीशन एट द ग्लोबल लेवल। देखिए इस सेंटेंस के थ्रू हमें यह पता लगता है कि हमें हमारे रिसोर्सेज का उतना ही यूज़ करना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है, जितना कि हमें यूटिलिटी के लिए चाहिए होता है। हमें ग्रीड या लालच में आकर उसको एक्सेस यूज नहीं करना चाहिए। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। देखिए ही वॉज अगेंस्ट, वह अगेंस्ट थे मास प्रोडक्शन के एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय द मासेस। और वह क्या चाहते थे कि यह जो प्रोडक्शन किया जा रहा है बाय द मासेस, मासेस के थ्रू किया जाए, बल्कि मास प्रोडक्शन नहीं किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड रिसोर्सेज। नाउ वी रीड अबाउट लैंड रिसोर्सेज। वी लिव ऑन लैंड, हम पृथ्वी पर रहते हैं। एज यू नो वी परफॉर्म आर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज ऑन लैंड। हम जितनी भी हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है वह लैंड पर परफॉर्म करते हैं। एंड वी यूज इट द डिफरेंट वेज, और हम इसका इस्तेमाल, जो लैंड का इस्तेमाल है, यूज है वह डिफरेंट वेरियस यूज करते हैं। दस लैंड इज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस। इसलिए जो लैंड के नेचुरल रिसोर्सेज उनकी अपने आप में वैल्यू है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, या नेचुरल वेजिटेशन को सपोर्ट करता है, वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। हाउएवर लैंड इज एन एसेट ऑफ इनफिनाइट। हम कह सकते हैं कि जो लैंड है वह एक एसेट है, धरोहर है। मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पस विद द केयरफुल प्लानिंग। इसलिए हमें हमारे पास जो भी अवेलेबल लैंड है उसकी केयरफुल प्लानिंग के साथ, बहुत ही प्री प्लानिंग के साथ, वेल प्लानिंग के साथ इसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। इंडिया हैज अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन्स। आप जानते हैं कि जो इंडिया की लैंड है डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड्स। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन। जो टोटल लैंड है उसका 43% पर क्या है, प्लेन एरिया। अबाउट विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। जो प्लेन एरिया है वो क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इंडस्ट्री सेटअप की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। माउंटेन्स अकाउंट फॉर 30%, और लैंड का जो 30% भाग है उस पर माउंटेन्स है ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। एंड इंश्योर पैरेलल फ्लो ऑफ द सम रिवर्स। और यह किसके लिए सोर्सेज का काम करता है, जो रिवर्स है उसके लिए सोर्सेज का काम करता है। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म। जो माउंटेन्स एरिया है वो क्या प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जो कि इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। अबाउट 27% ऑफ द एरिया ऑफ कंट्री इज द प्लेट्यूज रीजन। देखिए जो 27% लैंड का जो टोटल भाग है उसका 27% एरिया ऑफ द कंट्री इज द प्लेट्यू रीजन। प्लेट्यू रीजन है, इट पॉसेसेस रिच रिजर्व ऑफ मिनरल। और जो प्लेट्यू रीजन है वहां पर क्या रिजर्व होता है, मिनरल रिजर्व्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट होते हैं।